Hi guys, so as per the announcement, we are starting UPSC previous year questions 2010 to 2019, that is 10 years, and we will start geography, and the first topic is geomorphology. So let's start the video. So the first question is from year 2019, that is last year. On 21st June, the sun, option A, does not set below the horizon at the Arctic Circle. Option B, does not set below the horizon at Antarctic Circle. Option C, shines vertically overhead at noon on the equator. Option D, shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn. So pause the video and I'll tell the answer. So the correct answer is option A, that on 21st June the sun does not set below the horizon at the Arctic Circle. अगर आपको याद हो तो 21st जून समर सोलिस्टिस वाला डेट होता है. समर सोलिस्टिस में क्या होता है कि सन जो है वो वर्टिकली ओवरहेड होता है ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डी में शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन लिखा है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली ओवरहेड होता है. और इसी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, जो आर्कटिक सर्कल है, जो नॉर्दर्न पोल है अर्थ का, तो वो पोर्शन द एरिया अराउंड नॉर्दर्न पोल, वहां पे आपका ऑन 21st जून सन सेट नहीं करता है, पूरा दिन लाइट होती है आर्कटिक सर्कल में ऑन 21st जून, क्योंकि सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में शिफ्ट हो गया होता है तभी. सो दैट इज द आंसर. And if you just see this picture, you will have an idea about the different solstice and equinox. So equinox क्या होता है, जिसमें sun is vertically overhead at equator. Okay, like आप देख सकते हैं कि जब summer solstice हम बोलते हैं तो वो sun overhead है tropic of Cancer. I mean at the tropic of Cancer, northern hemisphere में वो ज्यादा लाइट रहती है. और winter solstice में क्या होता है, sun overhead होता है at the tropic of Capricorn. Okay, and you can see the dates like summer solstice happens in June 20 to 22, that is June 21 normally. ये date ऐसे इतना सा fluctuation हो सकता है. और आपका उसके बाद आता है आपका autumn equinox, जिसमें इक्वेटर पे ओवरहेड होता है, and that is September 22 to 23. Then in December 21st, 22nd, winter solstice happens where the sun is vertically overhead at Tropic of Capricorn. और मार्च 2021 में वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं. ये काफी फैंसी नाम है, मैंने पहली बार देखा आज. नॉर्मली हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं. सो मार्च 2021 स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टिस. Next question is from year 2018. So the question is that the term sixth mass extinction or sixth extinction is often mentioned in the news in the context of the discussion of. So आप देख सकते हैं कि ये current affairs से related question था geography का. Okay, so the options are, option A is widespread monoculture practices in agriculture and large-scale commercial farming with indiscriminate use of chemicals in many parts of the world that may result in the loss of good native ecosystems. Second option जो है वो है कि fears of a possible collision of a meteorite with the earth in the near future in the manner it happened 65 million years ago that caused the mass extinction of many species including those of dinosaurs. तो ये आप देखते रहते होंगे कि नॉर्मली हर कुछ साल में हम सुनते हैं 2020 में दुनिया खत्म, 2012 में दुनिया खत्म. सो ये वो वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी. ठीक है. एंड ऑप्शन सी इज लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स in many parts of the world and promoting their cultivation in other parts of the world which may cause the disappearance of good native crop plants and the loss of फूड बायोडाइवर्सिटी. तो आपको देख रहे हो कि फर्स्ट ऑप्शन में ये लोग बोल रहे थे कि जो मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आ गए एग्रीकल्चर में, या फिर इतना ज्यादा जो केमिकल यूज करता है होता है, उसकी वजह से गुड नेटिव इकोसिस्टम्स का लॉस होगा. वो एक पहला ऑप्शन है. सेकंड ऑप्शन है मीटेराइट का कोलिजन का डर, जिसके वजह से एक्सटिंक्शन हो जाएगा काफी स्पीसीज का, जैसे 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स का हुआ था. ऑप्शन सी है कि इतना ज्यादा कल्टीवेशन होता है अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का,
कि उसके वजह से जो नेटिव क्रॉप्स हैं, जो नॉर्मल ओरिजिनल क्रॉप्स थे हमारे, उनका डिसअपीयरेंस हो जाएगा और जो फूड बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो जाएगा। और जो ऑप्शन डी है दैट इज मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉइटेशन और मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, fragmentation or loss of natural habitats, destruction of ecosystems, pollution and global climate change। तो ये आपका एक ऑप्शन है जिसमें बोल रहे हैं कि जो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन हम लोग कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, या ये जो नेचुरल हैबिटाट्स में फ्रेगमेंटेशन आ गई है, इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो इन सब में से कौन सा इशू है जिसको एक टर्म दिया गया है दैट इज सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन या सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। सो प्लीज pause the video and think about the answer. So the correct answer is option D। और इस चीज को एक्चुअली बहुत सारे नामों में बोला गया है, होलोसीन एक्सटिंक्शन, सिक्स्थ एक्सटिंक्शन और एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन। ये क्या है? जिसमें हम लोग ये जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है रिसोर्सेज की, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये जो सारी चीजें जो ये प्रोसेसेस हो रही हैं, इसके इसी को एक टर्म दिया गया है कि अगर ये कंटिन्यू ऐसा होता रहा तो हमारा जो ये करंट जो इपॉच चल रहा है, करंट जो पीरियड चल रहा है, वो एक्चुअली इपॉच और पीरियड डिफरेंट डिफरेंट टर्म ऑफ ईयर्स को दिखाते हैं। सो आई विल नॉट कंफ्यूज यू देयर, बट ये होलोसीन जो है वो इपॉच होता है एक्चुअली में, ठीक है, एंड वी विल कवर दिस इन अनदर लाइक ज्योग्राफी वीडियो। तो ये इसी चीज को हम लोग ये न्यूज में था कि इसी चीज को ये लोग सिक्स मास एक्सटिंक्शन या सिक्स एक्सटिंक्शन बोल रहे हैं। ओके, next question is from year 2014 and it is related to evolution of organisms. Okay, so the question asks that which of the following phenomena might have influenced the evolution of organisms? First option is continental drifts, second option is glacial cycles. Now you have to select the correct answer using the code given below. Is it one only, is it two only, or are both responsible, or neither one nor two? So please pause the video and I'll tell the answer. So the correct answer is option C, both 1 and 2. Now, friends, like you should know कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है ना कि एक फिनोमेना किसी चीज को इन्फ्लुएंस करेगा या एक फैक्टर किसी चीज को इन्फ्लुएंस करेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि आंसर में सारे ही ऑप्शंस हों, लाइक जितने भी इन्होंने फिनोमेनास दिए हैं या फैक्टर्स दिए हैं, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कि सारे जो दिए रहते हैं वो आंसर में होता है। तो अगर आपको एकदम से पता ना हो और आपको लग रहा हो कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है टू गेट थ्रू प्रीलिम्स, यू शुड गो फॉर ऑल द ऑप्शंस, लाइक जो भी मेंशन्ड है, लाइक 1 and 2 है तो 1 and 2, 1 2 3 4 5 6 है तो 1 2 3 4 5 6। सो बिकॉज दिस इज अ पैटर्न क्वाइट नोटिस्ड, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ये कहना कि एक पर्टिकुलर फिनोमेना एक चीज को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी या ये उसका रिजल्ट नहीं होगा। सो इट डजंट वर्क 100% ऑफ द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक आपको अगर एकदम से पता है, एकदम 100% आपको पता है कि ये एकदम से इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकती, या बहुत ही वियर्ड अगर कुछ कनेक्शन है, तब आप ऑब्वियसली सोच सकते हैं कि ये शायद ऑप्शन में ना हो। लेकिन अगर बहुत वेग लाइन है, आप नहीं बता सकते क्लियरली कि ये इस चीज को क्या हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, देन प्लीज इंक्लूड दैट इन द ऑप्शन। लाइक यहाँ पे आपको ये बोलना कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, ये मुश्किल है बोलना। लाइक जैसे ग्लेशियल साइकिल्स फिर भी थोड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हेल्प करता है, क्योंकि ग्लेशियल साइकिल क्या है, आपका वेदर पैटर्न चेंजेस होते हैं। लाइक जो हमारा लास्ट आइस एज था वो था प्लिस्टोसिन ग्लेशियल पीरियड्स, और उसी को माना जाता है कि वो जो लास्ट था उसके बाद ही मेजर चेंजेस आए थे। तो ऑब्वियस है इवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स का में क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो ठंडी वाले जगह पे देखना आप, जो जानवर होते हैं उनमें ज्यादा फर्स होते हैं, तो क्यों? क्योंकि टू दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। सो दैट दैट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस कि ग्लेशियर साइकिल कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करेगी। लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में लोगों को शायद लग सकता है कि इवोल्यूशन कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है, बट अगर आप थोड़ा सोचें तो वेजनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, और उसको सराउंड करके एक मेगा ओशन रहती थी, मतलब रहता था, दैट वाज पैंथलसा।
ठीक है, तो अगर आप सोचे तो क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में उनका कहना था कि उसके बाद जो है कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर चले गए। तो उसमें भी इवोल्यूशन इसीलिए हो जाता है क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट रीजन्स में पहुंचे और उसके बाद उस हिसाब से अडेप्टेशंस हुआ, और उस वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। एंड दैट इज आई एम सेइंग दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट ट्रिकी, बट यू will get confidence if you solve more and more questions. You will have an idea ki how you can like attempt these kind of questions even if you are not fully aware of that particular option. Okay, so let's proceed. Next question is from the year 2013, and that is variations in the length of daytime and nighttime from season to season are due to option A, the earth's rotation on its axis. Like यहाँ पे पूछ रहे हैं पहली बात कि length of daytime and nighttime में जो variation होती है, please notice the keywords in the question, okay, that it's not asking that variation in season, it's asking कि ये जो season to season हमारा जो daytime और night time होता है उसके जो length में variation होती है वो क्यों होता है, ठीक है, that is a tricky part. It's not asking you that कि day और night होने क्यों होता है या season क्यों होता है, it's asking you कि ये जो length of daytime and night time में variation है from season to season ये क्यों होता है. Okay, so first option is the earth's rotation on its axis. Second option is the earth's revolution around the sun in an elliptical manner. Third option is latitudinal position of the place. And fourth option is revolution of the earth on a tilted axis. Now यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि पहली बात कि कोई भी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम, अगर आपने कभी भी ज्योग्राफी पढ़ा है, ठीक है, तो आपको इतना पता होगा कि ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ जीसी लियोंग में भी आई थिंक मेंशन है और एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो इट्स लाइक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश किया था दैट ये आपको सीजन भी नहीं पूछ रहा है, बट एक्चुअली इट्स अबाउट सीजन्स, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ये जो डे टाइम और नाइट टाइम का वेरिएशन होता है ये सीजन से ही होता है, ठीक है। आप देखोगे गर्मी है तो आपका दिन बड़ा होता है रात छोटा होता है, जब विंटर होता है तो दिन छोटा होता है रात बड़ा होता है। तो आपको ये चीज पता है और यही चीज ये लोग पूछ रहे हैं, बट आई ट्राई टू ट्रिक यू बिकॉज दिस इज हाउ यू विल फील इन द एग्जामिनेशन, राइट। आप छोटी छोटी चीजों से कंफ्यूज हो सकते हैं ड्यू टू द प्रेशर। तो यहाँ पे आपसे बस इतना ही पूछ रहे हैं कि ये जो वेरिएशन होता है रात और दिन के टाइम्स में या लेंथ में, तो ये क्यों होता है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड आई विल टेल द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। नाउ ये क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि आपका अर्थ्स रोटेशन जो है वो डे और नाइट करता है, लेकिन डे और नाइट के लेंथ में वेरिएशन अर्थ्स रोटेशन की वजह से नहीं होता है, ठीक है। और आपका अगर जो अर्थ है, आप अगर रिवॉल्यूशन सोचेंगे तो रिवॉल्यूशन से ये भी सच है कि हाँ रिवॉल्यूशन की वजह से आपके उसमें होता है ना थोड़ा सीजन्स होते हैं, लेकिन अगर जो अर्थ है वो टिल्टेड एक्सिस पे ना होके सीधा होता, ठीक है, तो लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम जो है वो सेम होता, क्योंकि जितने देर का रात होता उतने ही देर का दिन होता, क्योंकि वो सीधा होता तो एक फुल पोर्शन हमेशा डे होता और एक फुल पोर्शन हमेशा नाइट होता, जो हाफ हाफ है वो हाफ डे होता हाफ नाइट होता, तो डे टाइम और नाइट टाइम का जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होता। लेकिन क्योंकि हमारा रिवॉल्यूशन जो अर्थ का है वो एक टिल्टेड एक्सिस पे होता है, इसकी वजह से ये जो डे टाइम और नाइट टाइम है उसका लेंथ वैरी कर जाता है, करेक्ट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। और वो जो सेम पिक्चर मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, आप देखो यहाँ पे जब आप विंटर सोलिस्टिस जो है लेफ्ट साइड में, आप देखिए वहां पे दिखाया है कि जो हमारा अर्थ का एक्सिस है वो कैसे टिल्टेड है बाई 23.5 डिग्री। और इसीलिए आप देखो कि ये जो हमारा अ, होता है ना जो लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम है वो हमेशा ऐसे वैरी करेगा, क्योंकि ये ऐसे थोड़ा टिल्ट होके घूम रहा है, ठीक है। सो दैट इज द explanation I wanted to provide you. Next question is from year 2013. On the planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion is found where? Option A, atmosphere as moisture and clouds. Option B is found in freshwater lakes and rivers. Option C exists as groundwater. And option D exists as soil
मॉइस्चर। आपको इस क्वेश्चन के बाद पता चलेगा दैट व्हाई आई एम्फसाइज कि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च या पीएचडी में ना जाएं। लाइक आई हैव सीन पीपल हु लाइक कोई भी चीज़ पढ़ने बैठते हैं एंड दे फील कि यार पीएचडी करके ही उठेंगे, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग टू डू. You may not realize it right now and you may feel that I'm stupid, but if you are a serious aspirant and you fail sometime, you will understand that what I'm telling is the actual mantra to crack this exam. You should be in the moment. जो हम लोग जिंदगी में भी करते हैं, जहां आप जो पढ़ रहे हैं बस उस कंटेंट पे फोकस कीजिए. जैसे मैं बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन में यहाँ भी नहीं जा रही, एकदम टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन, बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश और उसका बेसिक का आंसर क्या है बस उतना समझने की कोशिश कीजिए. पीएचडी में मत जाइए, क्योंकि बाकी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी यही क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछने वाला है. ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है कि यूपीएससी वो क्वेश्चन रिपीट करे. तो और उतने रेयर चांस में खेलने की जरूरत होती नहीं है. यू शुड वर्क फॉर द बेस्ट चांसेस. तो इसीलिए आपको समझ में आएगा दैट व्हाई आई एम्फसाइज ऑन दैट. ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आई विल टेल द आंसर. So the answer is it exists as groundwater. और ये straight mention है एनसीईआरटी का जो बुक है, जो बेसिक बुक है जो हम सबको पढ़ना होता है, उसमें एकदम क्लियरली. ये देखिए, जो सबसे रिकमेंडेड बुक है, स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी, उसके चैप्टर 13 में ये टेबल दिया हुआ था, जहाँ पे इट इज मेंशन कि सबसे ज्यादा परसेंटेज ओशंस का होता है 97.25, सेकंड है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स का 2.05, और थर्ड है आपका ग्राउंड वाटर, जो पूछा गया था क्वेश्चन में. अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको देखिएगा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने थोड़ा ऐसे ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर ऐसे करके पूछा है, बट इट्स सिंपल कि यार कितना पानी कहाँ पे है. ठीक है, सो यू नीड टू थिंक लाइक दैट कि पूछना क्या चाह रहे हैं, आपको वो थोड़ा समझना पड़ेगा. यूपीएससी कभी कभी ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से पोर्ट्रेट करती है एक बहुत छोटे से चीज को, तो डू नॉट गेट इन टू दैट ट्रैप. ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज ग्राउंड वाटर 0.68%, और ग्राउंड वाटर के बाद आता है लेक्स 0.01%. आप उसके बाद देख सकते हैं बहुत ज्यादा छोटा परसेंटेज है, तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप सीक्वेंस देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ओशंस में है, फिर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में है, फिर ग्राउंड वाटर में है, फिर लेक्स में है, फिर सॉइल मॉइस्चर में है. नॉर्मली हम लोग एटमोसफेयर सोच सकते हैं कि यार बारिश होती रहती है तो एटमोसफेयर में नहीं, बट सॉइल मॉइस्चर में एटमोसफेयर से ज्यादा है. ये सब थोड़ा ट्रिकी होता है, याद रखिएगा. सॉइल मॉइस्चर में है, फिर एटमोसफेयर, फिर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. आपको लगता होगा कि स्ट्रीम्स एंड रिवर्स तो ऊपर होगा सॉइल मॉइस्चर से, बट नहीं. सॉइल मॉइस्चर में मतलब सॉइल मॉइस्चर बहुत ऊपर है, 5th पोजीशन पे है. ठीक है, फिर 7th पे है आपका स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, और 8th पे है आपका बायोस्फेयर. सो दिस इज द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज. Next question is from 2013, and they are saying that please consider the following options. First is electromagnetic radiation, geothermal energy, gravitational force, plate movements, rotation of the earth, revolution of the earth. Now, which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth? So मैं पहले ही बता देती हूँ कि जब ये क्वेश्चन आया था उस साल, ये क्वेश्चन वाज लाइक वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था. सो पीपल आर नॉट क्वाइट श्योर कि इसका आंसर क्या होगा, बट अभी तो यूपीएससी ने ऑब्वियसली आंसर की निकाल दिया है. 2013 का क्वेश्चन है, काफी पुराना है, तो एवरीबडी नोज द आंसर. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड विल डिस्कस द आंसर. सो द आंसर इज 1 2 3 4 5 6 सारे ही. ठीक है, अभी यही चीज मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देते हैं यूपीएससी, जहाँ पे आपको कुछ सारे ऑप्शंस देंगे और फिर बोलेंगे कि इसमें से क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और उसमें मोस्टली ऐसे चांसेस होते हैं कि सारे ही हो, जब तक कि एकदम से कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बहुत ही वियर्ड है और कनेक्ट ही नहीं करता. ठीक है, तो गो फॉर लाइक थोड़ा रिस्क लो, बोल्ड बनो, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा भी चांस है कि ये फैक्टर कर सकता है इन्फ्लुएंस, तो गो फॉर ऑल द ऑप्शंस. यहाँ पे जैसे अभी क्या बोल रहे, देखो यहाँ पे इसको ये क्वेश्चन ट्रिकी इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे बोल रहे डायनामिक चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. पहली बात है कि आप डायनामिक चेंजेस क्या होता है, चेंजेस तो चेंजेस है ना, स्टैटिक चेंजेस डायनामिक चेंजेस तो कुछ होता नहीं है. स्टैटिक चेंज कैसे हो सकता है. ठीक है, सो डायनेमिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इनका कहने का मतलब यही था कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे कोई भी बदलाव जो होता है उसके लिए इनमें से कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्वियसली हो सकता है. ठीक है, मैग्नेटिज्म से बहुत सारे
चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, टाइडल वेव्स वगैरह भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल ऑलवेज प्ले अ रोल, ठीक है, मैग्नेटिज्म आ जाता है वहाँ पे। जियोथर्मल एनर्जी, तो ये आपका जियोथर्मल एनर्जी है, जो एनर्जी इनसाइड द अर्थ है, तो ऑब्वियसली इट विल प्ले अ रोल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो एकदम से ऑब्वियस ऑप्शन है। प्लेट मूवमेंट्स जो हैं, तो प्लेट मूवमेंट्स का अभी फंडा है कि प्लेट मूव हो रहा है तो ऑब्वियसली सरफेस ऑफ द अर्थ में चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिकी जो पोर्शन था ना, वो था आपका ये रोटेशन रिवॉल्यूशन वाला चीज, ठीक है। क्योंकि देखिए, रोटेशन और रिवॉल्यूशन से सरफेस ऑफ द अर्थ पर चेंजेस ऐसे डायरेक्टली आप सोच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हाँ, रोटेशन से आपका दिन और रात होता है, और दिन और रात के होने की वजह से सरफेस ऑफ द अर्थ पे कुछ चेंजेस होते हैं, तो ऑब्वियसली रोटेशन भी इंक्लूड हो गया। फिर वैसे ही रिवॉल्यूशन के बारे में भी सोचे तो सीजन्स होते हैं उससे, डे, तो ऑब्वियसली सीजन के वजह से आपके ठंडी होंगे या गर्मी होगी, तो यू नो फिर बारिश होगी तो बारिश के वजह से सरफेस ऑफ द अर्थ पे चेंजेस आएंगे, गर्मी की वजह से सरफेस ऑफ द अर्थ में चेंजेस आएंगे, क्रैकिंग हो सकती है। सो ठंड में ऑब्वियसली आइस कैप्स बढ़ जाएंगे, ठंड ज्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली सरफेस ऑफ द अर्थ में उधर से भी चेंजेस आएगी। सो यू हैव टू थिंक इन दैट मैनर कि कहीं ना कहीं इट विल कनेक्ट। सो या गेट इनटू योर that mind zone, and that is why we are practicing previous year questions. And the biggest mantra here is stick to what you are studying. ज्यादा मत सोचो, जो पढ़ रहे हो बस उसको ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। जितना वहां पे लिखा है बस उसको ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। पीएचडी नहीं करना है, ओके। एंड आई विल नॉट रिपीट दिस मोर एंड मोर, बट ठीक है, समझ जाओ। Next question is, which one of the following sets of elements was primarily responsible for the origin of life on the earth? जिसमें पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। सेकंड ऑप्शन इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। थर्ड ऑप्शन इज ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। So you can pause the video and we'll discuss the answer. The answer is कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सो यहाँ पे क्या है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ थी ऑन द अर्थ, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ही है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो इवोल्यूशन है, ये नॉर्मली दो स्टेजेस में हुआ था। फर्स्ट स्टेज था लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर मतलब कि जो सन के जो सोलर विंड्स थे ना, उन्होंने जो ऊपर का पहले जो लेयर था, ठीक है, वो हटा दिया था, जो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं था लाइफ के लिए, तो वो उड़ा के लेके चले गए सोलर विंड्स। तो उसके बाद क्या हुआ, जो उस सेकेंड स्टेज में जो इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर हुआ अर्थ का, वो आपका लाइफ को सूट करने लायक हुआ। और वो अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन्ड वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, एंड these all, you know, together gave, like, are primarily responsible for the origin of life. That is why you can see कि यहाँ पे ऑप्शन बी में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों ही हैं। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा ऑफ ट्रैक जाकर सोचे, तो आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में सोडियम मेंशन्ड है ना। अगर आप कभी भी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, तो आप कभी भी सोडियम के बारे में नहीं पढ़ेंगे वहाँ पे कि सोडियम के वजह से ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रही थी अर्थ पे। फिर वैसे ही आप देखो ऑप्शन सी में आपका कैल्शियम है। आई मीन फॉस्फोरस फिर भी सोचा जा सकता है, बट कैल्शियम इज, आई डोंट थिंक, समवेयर मेंशन एनीवेयर इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। फिर ऑप्शन डी में आपका पोटेशियम है, ठीक है। तो ये सब आप ज्यादा सुनेंगे नहीं जब आप ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है इन सारे ऑप्शंस को स्ट्राइक आउट करना, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द आंसर इज अबाउट। और यहाँ पे एक फन फैक्ट जान लेते हैं कि जो फॉस्फोरस है, ये बहुत वाइटल होता है मेटाबॉलिज्म के लिए। तो आज अगर हम देखें तो इनमें से सारी ही चीजें हमारे बॉडी के लिए वाइटल हैं, मतलब होता है ना, सस्टेनेंस के लिए हमें ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपने लाइफ में। बट जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, तब कौन से एलिमेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे? वो ये सारे थे, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और ऑक्सीजन। So this is a very cute question which was asked in the year 2012, and the question is,
A person stood alone in a desert on a dark night and wanted to reach his village, which was situated 5 kilometers east of the point where he was standing. He had no instruments to find the direction, but he located the pole star. The most convenient way now to reach his village is to walk in the first option, facing the pole star; second option, opposite to the pole star; third option, keeping the pole star to his left; and fourth option, keeping the pole star to his right. So pause the video and I'll discuss the answer. So answer is keeping the pole star to his लेफ्ट ना। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है। आप देखो इसमें क्या कह रहा है कि ये एक इंसान खड़ा है एक डेजर्ट में, रात है, डार्क नाइट है, उसको अपने विलेज जाना है जो 5 किलोमीटर ईस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है, लेकिन उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, बट उन्होंने पोल स्टार को लोकेट कर लिया है। अभी पोल स्टार का अगर आपने कभी भी पढ़ा है तो पोल स्टार को हम लोग नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, विच इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर उसने लोकेट कर लिया पोल स्टार, मतलब उसने कौन सा डायरेक्शन लोकेट कर लिया, नॉर्थ डायरेक्शन को, और उसको जाना कहाँ है, 5 किलोमीटर ईस्ट। तो अगर आप ये पिक्चर देखो तो आप जो ईस्ट है, आपको ईस्ट अगर जाना है, ठीक है, तो नॉर्थ किस साइड आता है ईस्ट के, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो वो जो बंदा जाएगा, अब वॉक करेगा अपने विलेज के लिए, तो वो क्या करेगा, पोल स्टार को अपने लेफ्ट में रखेगा, ठीक है। So that is the answer. I really felt this question is super cute, super cute. And the last question from the topic geomorphology of 10 years previous year question of geography is, from the point of view of evolution of living organisms, which one of the following is the correct sequence of evolution? ठीक है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आया था, उसका करंट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन हमें बताना है इन द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑटर, टॉर्टोइज, शार्क। सेकंड ऑप्शन इज शार्क, tortoise, otter. Third option is tortoise, shark, otter. और fourth option is shark, otter, tortoise. ठीक है, and I must say this question is extremely difficult. तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो, फिर we'll discuss the answer. So ज्यादा डिस्कशन का कुछ है नहीं इसके आंसर में। द आंसर इज शार्क, टोटोइज, ऑटर। सबसे पहले शार्क आया, फिर कछुआ आया और फिर ऑटर आया। अभी यहाँ पे क्या है, देखो शार्क थोड़ा ऑब्वियस हो जाता है क्योंकि सबको, अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया लिया है, वो पिक्चर जो देते हैं ना इवोल्यूशन वाला, कि कैसे कैसे इन्वायरमेंट बना, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स आए थे, वो पिक्चर है एनसीईआरटी में। लेकिन बहुत डिफिकल्ट है यार, वो बहुत सारी चीजें लिखी हैं उसमें, आपको सारी चीजें याद नहीं हो सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन वही बात है, अब एक्सट्रीम हार्डवर्क चाहिए टू रिमेम्बर दैट फुल टेबल एंड यू नो गिव द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर शार्क एक ही ऑप्शन में होता तो फिर इजी हो जाता थोड़ा सा, लेकिन इन लोगों ने उसको और डिफिकल्ट बना दिया, दो ऑप्शन में शार्क को पहले दे दिया है। तो आई थिंक दिस वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, but yeah, so we end the video here and I'll come up with another topic of geography in the next video. Thank you for watching the video, and I would request everyone to please like the video if you really found it useful. I am giving a lot of effort in making these videos, and if you really feel that you can help your UPSC aspirants friends with this video, please share the video. And if you're new to this channel, please subscribe. It's really going to help me a lot. Thank you so much for watching the video.